नहीं रुक सकता भाभी। शर्म नहीं आती पीछा करते हो और फिर आवाजें कसते हो? This is my first television project after 7 years. That's a tough question. What made you choose this? 7 साल के बाद why I chose this script is because the characters in the script were something that really or were something that I found appealing. Usually what happens is कि कभी कभार आपकी script में सिर्फ आपके जो main characters होते हैं those are the characters जिस पे focus होता है, but इस script की अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें सारे characters जो हैं बहुत wholesome तरीके से लिखे हुए हैं, सबकी अपनी arcs हैं, सबकी अपनी stories हैं, and holistically मुझे वो project जो है it seemed like a good solid wholesome project. Anjum was directing it. It was going to be on ARY, so all the great ingredients that I needed हैं इसके अंदर. You and Maya are friends off screen as well. So how would you define your chemistry with her? माया के साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट जो किया था that was परे हट लव. That was the first time I got to work with her. उससे पहले एक एड में थोड़ी बात हुई थी तो मेरी इतनी कोई बातचीत नहीं थी माया के साथ. So we met at on the Pare Hut Love set, and she was wonderful energy. She's a great actor. She's an amazing actor. She's very professional. And as a human being she's a very good human being. तो बहुत मज़ा आया था परे हट लव पे. इन्जॉय किया हमने, हंसते खेलते रहते थे. एंड दैट इज़ समथिंग दैट्स कैरिड फॉरवर्ड इनटू दिस ड्रामा. वी शेयर दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वेयर वी हैव फन वर्किंग टुगेदर. मुझे काम करते हुए भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ. एंड अच्छी बात यह है कि इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कम्प्लीटली कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट. सो उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है. जब आपकी किसी से बातचीत होती है तो अच्छी बात ये होती है कि आप सीन से पहले बैठ के आपस में सीन बना लेते हो. यू डिस्कस द सीन, यू गिव ईच अदर स्पेस कि अच्छा मैं ये करूँगा तो तुम्हारे पास ये जगह होगी, अच्छा तुम ये करोगे तो मेरे पास ये जगह होगी. सो दैट वे इट्स वेरी फुलफिलिंग. Apart from Maya, how was the experience working with such a diverse cast? सबा आपा के साथ पहले भी काम हुआ था. I've worked with her before. The interesting thing is the last project that I did for television about 6-7 years ago, she was on that project, and now after that she's on the same, she's with me again. So that was interesting. Shabir Jan is someone that I've always admired his work. उनका मैं फ़ैन हूँ, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. बिकॉज अगेन वर एन अमेजिंग सोल. हंसते रहते हैं शूट पे, मजाक मस्ती करते रहते हैं. सो बहुत मज़ा आया उनके साथ. How challenging is the television screen, or is it challenging in the first place? आपकी एज एन एक्टर आपकी मूवमेंट जो होती है वो भी एक एक्टिंग का हिस्सा है. जब आप बोलते हैं, आप जब एक्टिंग पढ़ते हैं या कर रहे होते हैं तो एक डायलॉग डिलीवरी तो होती ही है, बट मूवमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. Think of your favorite character in this drama. You have to name someone. That's a tough question. I would say working with Maya is, I think इन सारों में से जिनके सारों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन सारों के साथ कॉमराडरी वाइज माया के साथ मेरी ज़्यादा कॉमराडरी है. बिकॉज we've come out right from a film. So एक अंडरस्टैंडिंग और कॉमराडरी उससे ज़्यादा है, वो तो है ही. But apart from that, I think who I really enjoyed working with was Uzma Hassan. उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया. Uzma again is a brilliant actor, and she is amazing to work with. She's magic as soon as the director calls action. And I think in entirety, अगर मैं project की बात करूँ तो for me working with Anjum has been very interesting. Coming to the fun part, who do you think is the funniest one of all? The actors. I think Anjum's pretty funny. Shabir Saab's also pretty funny. Everybody's funny in their own little way, but Sheru's really funny. वो है, but I think एक जो है जो enjoy करते हैं अपने meals वो शबीर साहब हैं. He really enjoys his meals. हम सदर गए थे शूट करने के लिए तो उन्होंने पहुँचते साथ ही हलवा पूड़ी मंगवाई अपने लिए, कचौरियाँ मंगवाई अपने लिए. So माशाल्लाह वो enjoy करते हैं. अच्छा, whose performance surprised you the most? Who was this person? Like I said, Uzma. I really enjoyed working with Uzma. Maya I've worked with already. I know she's a wonderful actor, but this was the first time I was working with Uzma, and I really enjoyed my scenes with her. मज़ा आया मुझे उसके साथ scenes करते हुए. अच्छा, who has been your biggest support throughout this project? Well, like I said,
अगर मैं सपोर्ट वाइज उस तरीके से कहूँ कि हाँ देव बिन टफ डेज और समथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी तक कोई एज सच वर्क वाइज टफ डेज नहीं आए, बिकॉज एवरीबडी इज़ सो पॉजिटिव ऑन सेट. सब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए काम कर रहे हैं, एंड हर कोई अपने काम से जस्टिस कर रहा है. यू नो, एवरीबडी वांट्स टू गिव वन मोर टेक, और यू नो अगर आप चाहें तो मैं इसको डिफरेंटली कर लूँ. So it's a lot of, I think everybody's been like a big family supporting each other. About your character Aslam. So as the name suggests, Pehli Si Mohabbat, it's a love story. It's a sweet love story that may become slightly tragic, but that's up to you. If you guys keep watching, you'll know more. And it's a light love story that gets into becomes slightly intense after a little while. It's also coming of age of all the actors, because एक छोटी सी उम्र में, मतलब 23-24 साल की उम्र दिखाई है असलम की एंड रक्षी की भी, उससे उसकी कहानी शुरू हुई है. So it has light moments as well, it has heartwarming moments as well. So it's like a wholesome kind of a project that you guys inshallah will enjoy. असलम जो है वो he's बहुत हीरो समझता है अपने आप को. अपने दोस्तों में शायद वो हीरो है भी, और गली मोहल्ले का लड़का है, एंड यंग है, 23-24 साल का है, BSc कर रहा है. हर चीज़ में मजाक मस्ती कर रहा होता है, हाजिर जवाब है बहुत, लेकिन अपने वैल्यूज़ और एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो हैं उसके लिए वो स्ट्रांगली खड़ा होता है और उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है. जज्बाती है थोड़ा सा, एंड ही इज़ अ स्वीट कैरेक्टर. होपफुली यू विल फाइंड हिम टू बी लवेबल एज वेल. Thank you so much, Sharyar, for your time. Thank you so much. Thank you so much for having me, and please do watch पहली सी मोहब्बत. हमने बहुत मेहनत से काम किया है और इसमें बहुत सारी मोहब्बत डाली है, एंड आई होप जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो स्क्रीन के थ्रू आके मिलेगी मोहब्बत. सो आई रियली होप यू एन्जॉय इट, एंड यू enjoy watching it as much as I enjoyed shooting for it. मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं. अगर किसी दिन नंगे हाथों पकड़ी गई ना तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप तुम्हें गैरत के मारे बानी भी आएगा. के दरवाजे पे फिर से तेरी उसकी अम्मी मान गई. तुझसे ही फिर अपनी दीवाना. पहली सी मोहब्बत मांगूं. मौत से तो होते हैं ना दुनिया में मनसा, शायद मौत सा ही हो जाए.